ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಸಯ್ಯದ್. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಮಂತ್ರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾರ? ಈ ಮಂತ್ರಿಯ ಕೆಲಸ ಏನು? ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ ಕಾರು ಬಂಗ್ಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಜಾ ಮಾಡುವ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ? ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅಂತ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೋಡಿ ದೈನಂದಿನವಾಗಿ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಔಷಧ ಉಪಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಇಂಥ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವಿದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದಂಥ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ ಕುಟುಂಬ ಇವತ್ತು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬಾದರೂ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಮಂತ್ರಿ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ. ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕ್ಕ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಸದುಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು TADA ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಬಂಗ್ಲೆ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ವಾ? ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಫಿಡೇವಿಟ್ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರ್ತೀರ ನಾಮಿನೇಷನ್ ತುಂಬುವಾಗ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರನ್ನು ನೀವ್ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ TADA ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ? ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭತ್ಯೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ? ಆ ಭತ್ಯೆ ಎಂದಾದರೂ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹಿತ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆ ಇದೆ, ಯಾವ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದರ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಗಗನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ 900 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ 175 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು 100 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ದಾಟಿದ್ದೇವೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಂದಾದರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ? ಕೂಗನ್ನು ಎಬ್ಸಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕೂಗು ಎಬ್ಸಿದರೆ ಮೋದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರಾ? ನೀವು 26 ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆರಿಸೋದವರು ಮೂಕರಾಗಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋದಿ ಬಿಡ್ತಾರಾ? ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋದಿ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯ ಕಾಲು ಮುರಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೇ ನೀವು ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವಳ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಿ. ನೀವು ಛೂ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗುಂಡಾಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ದೇಶ ಒಂದು ಎತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇಶ ಬರ್ಬಾದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶದ ಬಡ ಜನರು ಕೂಗೆಬ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ತತ್ತರಿಸದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹಿತ ಇನ್ನೂ ಶಾಂತರಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾವೆ. ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಹೆದರುವಂಥ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತರುವಂಥ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಪಕ್ಷರಹಿತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಬರ್ಬಾದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಮತ್ತೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. पहले बना हुआ था 17 में, फिर किसी कारण बस घर पे रह गए। रिन्यू करवाने आए हो? रिन्यू करवाने आए हो? आप भी रिन्यू करवाने आए हो? ये बुला लो इनको। अच्छा, सारे टाउट्स खड़े हुए हैं इधर। अब ये रिन्यू करने के लिए भी लाइन में लगा रखा है। रिन्यू तो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, जो हम उस दिन बात कर रहे थे। सुबह 4 बजे से ऐसा नहीं सर, अभी
7-8 बजे से लगे, 4 बजे से लगे। ऑनलाइन कराना था फिर भी सर सुबह 2-3 बजे आ जाते हैं। यही मुझे पता चला, इसीलिए मैं देखने आया था इसको। रिन्यू का तो सर बाहर से होना चाहिए, ऑनलाइन बाहर से होना चाहिए रिन्यू। रिन्यू का करवाएंगे, हाँ सब रिन्यू करने वाले हैं। सर नए वाले भी हैं, नए भी बनने हैं। अच्छा 4-5 दिन हमें रोज लाइन लगानी पड़ रही है। 4 बजे से अभी तक सारे और सर ये 11 बजे आते हैं, ऑफिस लेट होते हैं बहुत। 11 बजे आते हैं। अभी ऑफिस खुला कि नहीं खुला? अभी खुला है, अभी नहीं खुला, अभी जस्ट खुला है, अभी नहीं खुला सर। अभी खुला, ऊपर पता नहीं खुला कि नहीं खुला, अभी तो लोग बाहर जा रहे हैं। हटिए जरा मैडम। क्या है, एक तो इनको आज टाइट कर दो सबको कि ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। नमस्ते। कितने बजे से काम शुरू किया है? मॉर्निंग कितने बजे होती है आप लोगों की? सर 9:30 से कर रखा है, पौने 10 बजे। पौने 10 बजे खोल रखा है। हाँ जी एक लेबर का कार्ड बनाने में कितनी देर लगती, डील करने में कितनी टाइम लगता है? सर मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह फटाफट वेरीफाई करके ओके करके एमआर हैंड टू हैंड दे देते हैं इनको। कितना समय लगता है एक आदमी को डील करने में? लेस देन 1 मिनट। अभी बज गए 10:30। हाँ जी सर। 45 मिनट हो गए आपको काम करते हुए। सुबह से कितने लोगों का काम किया है दिखाओ। सर एक्चुअली आज सर्वर का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है। आज सर्वर का हो गया? क्या प्रॉब्लम है? सर्वर के लिए लिखा आपने फिर किसी को? सर ये हेड कहाँ है आपके ऑफिसर? सर आ रहे हैं सर को इन्फॉर्म कर। कौन ऑफिसर है? सर वो हरि सिंह मीना सर। सर्वर खराब है, सुबह से आपने लिखा किसी को? किसको फ़ोन किया आपने? कोई मेल भेजी? सर अभी ये किसी को भेजा आपने? किसको भेजा है? सर ये ग्रुप पे मैसेज कर। कौन सा ग्रुप है? सर ये बोर्ड का कौन ऑफिसर है इस पे? सर यहाँ पर आपने लिखा है सर्वर खराब है। नहीं सर हाँ ये एरर आ रहा था ना, ये एरर आ रहा था। ये 10:15 पे आपने भेजा है। हाँ सर क्योंकि 2-3 बार खोल के कितने लोग रजिस्टर हुए हैं सुबह से? सर रजिस्टर ही नहीं हो पाया ना क्योंकि वेरीफाइड एक भी नहीं हो रहा। नहीं सर, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सबसे बड़ी बात क्या है सर, जब ये डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं ना यहाँ पर, ये देखिए जब ये कल open कितने हुए करते हैं थे? ना, सर कल हमारे हो गए थे 200 हो गए थे सर, 200 हो गए, उससे ज़्यादा ही हुए। स्लिप तो नहीं करते, जो ऑब्जेक्शन होते हैं उनको हम लिख लेते हैं। आप लोगों की क्या पोस्ट है? सर मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे, ये सीसीओ है, वो डीईओ है, डाटा एंट्री। तो एक आदमी डील कर रहा है। नहीं सर मैं कर रही हूँ और ये आईडी एक्सेस कैसे करते हैं इसको? सर जैसे आप किस काम से आए हो भाई? रिपोर्ट जीरो था। डीएस कल भी नहीं आए थे, आज भी नहीं आए। कल डीएस आए थे आपके? सर आए थे उनका जीरो उनकी जो रिपोर्टिंग आई थी आपके यहाँ से 0 आई थी कि एक भी वो नहीं है वेरिफिकेशन। कल कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, रिपोर्ट 0 आई है यहाँ से। नहीं सर मैं आपको दिखा रही हूँ, रिपोर्ट की फाइल बना रखी है सर। अभी चेक करवा लो जरा। सर जैसे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट में जाते हैं ना, इनका नंबर डाल के अभी तो मैंने इनका चेक कर दिया है, तो इनके सारे डॉक्यूमेंट ओपन करके देखते हैं। मेन क्या देखते हो? जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन हो गई, इन पे से नाम वगैरह सिग्नेचर वगैरह किए नहीं किए, मेन वही है। और आधार कार्ड आप पे- इसका फॉर्म खोलते हो इस पे? हाँ ये जो इनका आधार कार्ड है ये सब पेपर इन्होंने लगाया। फिर ये ऑनलाइन का फायदा ही क्या है? सर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? सर साउथ। सर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर साउथ से कल नंबर ऑफ एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय डिप्टी सेक्रेटरी 0 है। कोई रजिस्टर मेंटेन करते हैं कितनी एप्लीकेशन कल अप्रूव की? अपने जो फाइल बनाई है ना रिपोर्ट वो लेके आओ। आप पहले ऑनलाइन अप्लाई करा आपने, फिर हमारा सिस्टम ही ख़राब है। पहले हम ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगते हैं, फिर लाइन में लगवाते हैं, फिर 1 घंटे बैठ के इनकी चेक करते हैं, तो ये तो बेकार है। फोटो खींचनी होती है लाइव। तो फ़ोटो खींचने के लिए पूरा सिस्टम आप वेरीफाई करते हो कि भाई इसने सिस्टम, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। LIC में पहले हम वेरीफाइड पे थे, हमें फिर आप वेरीफाई करके फिर एमओ को देते थे। डॉक्यूमेंट पे फिर हम इधर ओके लिख देते थे, तो ये मैम ये नेक्स्ट इसकी ज़रूरत क्या है? सर ये लाइन देख रहे हो कितनी लंबी लगी है? सुबह 4 बजे से लोग लगे हुए हैं। 3:30 से कितने बजे आए थे आप? 3:30 बजे सुबह आके लगा हुआ है आदमी। सर ये एक ही टाइम पे हो सकता है। आप एक मिनट रुको। ये ज़रूरत ही क्या है इसकी? कौन सा वाला सर ये आप मैंने अब ये सुबह 3:30 बजे इन्होंने कितने दिन पहले अप्लाई किया? 1-1.5 महीने से करा है। 1-1.5 महीने पहले इन्होंने अप्लाई किया। अब हम इन्हें 1.5 महीने बाद यहाँ बुला रहे हैं और कह रहे हैं सुबह 3:30 बजे से लाइन में लग के यहाँ ये इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि इनके सारे पेपर चेक करने हैं हमें। है इन्होंने जो सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है वो साइंड है कि नहीं है, फिर ऑनलाइन का फ़ायदा ही नहीं है। एक्चुअली सर आई एम लुकिंग आफ्टर नॉर्थ इंस्पेक्शन के लिए, तो वी डिवाइडर वी आर 3 डिप्टी सेक्रेटरी। यहाँ पे एक है और वहाँ ईस्ट में एक है। आई एम लुकिंग इन द नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट वेयर हैवी टेंडेंसी। नहीं यहाँ इसलिए मैं यहाँ आया था कि यहाँ का पहले समझ लेते हैं, फिर हैवी वाले पे जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ लिटिल लाइट। सर
तो लाइट में भी ये स्थिति है, फिर हैवी में क्या होगी? इतनी लंबी पेंडेंसी है, बाहर लाइन देख रहे हो, यहाँ पे हम सुबह से सर्वर इनका काम नहीं कर रहा, तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु केम एट 3:30। सुबह 3:30 बजे से आदमी लाइन में खड़ा है और पहला आदमी है। उसके बाद के सुबह आए हुए हैं, उसका अभी तक 10:30 पौने 11 बज गए, अभी तक काम नहीं हुआ क्योंकि सर्वर नहीं चल रहा। दूसरा, प्रोसेस इतनी कम्बरसम है कि हम सारा यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ये लेबर डिपार्टमेंट की फाइलें हैं। नहीं सर, ये बोर्ड की है, बट वी हैव बीन गिवन टू रूम्स सर। बट क्या है इन फाइलों में? यू कैन नेवर सर्च ए फाइल फ्रॉम हियर। प्री ऑनलाइन प्रोबेबली आई थिंक। कोई बात नहीं, प्री ऑनलाइन के भी कोई कंपनी हायर करके सब कुछ स्कैन करा दो, महीने भर में स्कैन करके कंपनी डिजिटाइज करके सारा कुछ दे देगी सर्चेबल फॉर्मेट में। हाउ मेनी कैमरा यू हैव मैम? हाउ मेनी कैमरा? वेयर आर योर लैपटॉप्स व्हिच आई हैव सेंट? व्हाई डू यू यूज दैट? क्या कर रहे हैं वो? डिप्टी सेक्रेटरी। कल डिप्टी सेक्रेटरी की रिपोर्ट 0 थी। सर कल तो 2400 के आसपास आया सर। वी डिस्पोज टू ये कल की रिपोर्ट है, तो 6 बजे के पहले तो 0 दिखा रहा है, इसीलिए रिपोर्ट में 0 गया। ये कल की सर, ये साइन किए थे हमने, कितने इन्होंने एप्लीकेशन साइन। आपको ये बोला गया है कि मैनेजर जो है वो लाइन में लोग खड़े हुए लोगों के पास जाएगा, वहीं उनके डॉक्यूमेंट देखेगा, वहीं सील लगाएगा, जी सर। ऐसा बोला गया? हाँ जी सर। आपने सुबह किया? हाँ सर, कर रहे हैं हम। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को लगा। नहीं, डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं, मैनेजर का काम है। नहीं, ठीक है। नहीं, अभी आप सुबह से गए यहाँ पे लाइन में? सर मैं यहाँ पे जैसे ये वर्कर आए थे ना, इधर वाली लाइन जो ऊपर, आपने एक भी आदमी का वेरीफाई किया लाइन में लगेगा? सर डॉक्यूमेंट्स मैंने इनके देखे थे। जैसे आपको सील लगानी है। और ये मेंबरशिप रिन्यू वाले बहुत लोग लगे हुए हैं लाइन में। वी डोंट नीड देम टू बी हियर, वी कैन जस्ट। रिन्यूअल का लैप्स डिफॉल्ट 1 साल का है। नहीं, 1 साल तो कहीं भी नहीं है। 1 साल का देखो, सुनो, कोविड का सिचुएशन था। 1 साल आपके किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ, किसी कोर्ट ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ, ये हमारा सेल्फ इम्पोज्ड है। 1 साल कहीं नहीं लिखा हुआ कि 1 साल बाद ये आदमी आएगा या 2 साल बाद आएगा तो हम इसको कहेंगे नहीं तुम 1 साल बाद आयो, वी कांट एंटरटेन यू। कहीं लिखा हुआ नहीं है। किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में नहीं है कि 1 साल बाद आप रिन्यू नहीं करोगे। ये हम तो हम कर दें बस सारा। तो व्हाट आर वी चेकिंग देन? 90 डेज का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। सर वही सर, फिर वो हाथ से वही लिख नहीं, पर 90 डेज कहाँ से आया ये कि भाई 90 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दे रहे हैं सर। वो सेल्फी डिक्लेयर कर रहा है ना। सेल्फ डिक्लेयर कर रहा है। हाँ, वो अपनी तरफ से लिख के दे सकते एक हमारा पास फॉर्म है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है सर, उसमें देखो मैं बताऊं आपको, ये सारे लोग अब तो बोलेंगे नहीं, यहाँ पे नीचे खड़े हैं दलाल पैसे लेने वाले, सर और सब के सब दलाल पैसे लेते हैं, सारे इन लोगों से पैसा खाते हैं। उसके बाद में इनको पता होता है, यहाँ पे इनसे ठेकेदारों की सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेबर यूनियन का सर्टिफिकेट मांगते हैं, उसके बाद इनका काम करते हैं। ये दलाली का धंधा बनाया हुआ, मैं चलने नहीं दूंगा। इस तरह सबको जेल भिजवा दूंगा अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा यहाँ पे। तो तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह में काम करो, और इस तनख्वाह में पेट नहीं भरता है तो नौकरी छोड़ के चले जाओ। गरीब लोगों के नाम पे, काम के नाम पे अगर किसी ने भी दलाली की हरकत करी ना यहाँ पे, अब मैं उतर गया हूँ फील्ड में, जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। नहीं सर, लेकिन हम यूनियन वालों को अगर हम कहते भी हैं कि भाई वर्कर अपना सेल्फ सर्टिफिकेट लगा देता है, तो वो हमसे आपके कहने पे नहीं जाऊंगा। यहाँ 50 लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि हमसे यूनियन का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं लोग। झूठ बोल रही है जनता यहाँ पे खड़े होके। शौक नहीं चढ़ा हुआ है लोगों को यहाँ पे आके कि आपके 3:30 बजे आके लाइन में खड़े हो जाएंगे, उसके बाद में झूठ बोलेंगे आपके बारे में। इन लोगों की सेवा करने की तनख्वाह मिल रही है, सेवा करो, नहीं तो छोड़ दो नौकरी। मजाक बना के रखा हुआ है सबको। Two manager will go, they will just no लगा कि okay, simply they will come. एमटी कॉम साहब, ये भी आपका ही ऑफिस है, सर है ना? सर ये भी मैं कर दूंगा। सुनो, I'll be here नो, and I will सुनो। आई जस्ट केम डाउन, मैं और सेक्रेटरी मैडम उतरे, हमने पूछा भाई किस लिए खड़े हो? बोले जी रिन्यूअल के लिए खड़े हैं। कम से कम 7-8 लोग बोले एकदम कि जी रिन्यूअल के लिए खड़े हैं, सुबह 4 बजे से खड़े हुए हैं, लाइन में लगा के रखा हुआ है। आपका कोई अगर रिन्यूअल के लिए कोई आ भी रहा है, पहले तो अभी सिस्टम को ईज आउट करेंगे सारे को, पर रिन्यूअल के लिए अभी के प्रोसेस में भी ये मैडम या आपका कोई ऑफिसर जाके लाइन में लग के खड़े हो जाए, रिन्यूअल वाले कौन कौन है, उसका सेल्फ डिक्लेरेशन देके हो गया, ठप्पा लगा के फॉर्म लेके खत्म करे। Why people are waiting outside like this? we can do that, sir, no issue. और आपका डीएस कहाँ है? अभी तक आया नहीं है। डीएस कौन है यहाँ पे? डीएस साहब मीना सर हैं? एचएन मीना। आपका डीएस अभी भी नहीं आया यहाँ पे, क्या कर रहा है डीएस? ये शो कॉज दीजिए कि आप सुबह 10:30 बजे तक, 10:30 क्या, अभी तो कितने बज गए? 11 बज गए। आप 11 बजे तक ऑफिस नहीं आए? वाई ही शुड नॉट बी सस्पेंडेड? और अगर उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो सस्पेंड कर दीजिए। आपके रिन्यूअल है और नया ले रहे हैं? रिन्यूअल है। तो रिन्यूअल में आपने क्या किया फिर?
ऑनलाइन से भरना पड़ता सर ये अपडेशन अपडेशन मतलब रिन्यूअल हुआ? नहीं सर, जब ऑफलाइन का फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑनलाइन किया तो उसे अपडेशन में काउंट होगा। इनका पहले ऑफलाइन ऑफलाइन में सर ये ऑफलाइन इनका कार्ड बना हुआ था। अभी जब ये दोबारा रिन्यूअल के लिए आते हैं ये इसमें अपडेट कर देते हैं ऑनलाइन। ये ऑनलाइन के लिए अब सब फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। नहीं अभी आज इनके हाथ में क्या देंगे, अभी आपने चेक करने के बाद इनके हाथ में ये वो डॉक्यूमेंट ओके करके सर ये MR स्लिप मिलेगी इनको, जो भी इनका अमाउंट होगा वो इनका 25 रुपीज़ से अबव का अमाउंट होगा, जो भी इनका अमाउंट होगा वो ये पैसे सबमिट करेंगे, इनको MR स्लिप मिल जाएगी विद देयर डॉक्यूमेंट्स। तो इसका फिर कंफर्म हो गया कि नहीं हुआ? इसी कंफर्म मेंबर और नॉट? सर कंफर्म है, इसके बाद इनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं नहीं? जाने की जरूरत नहीं है। तो इनको सारे बेनिफिट जो मिलने हैं वो मिल जाएंगे? हाँ आप बताओ। सर वो मिल जाएगी। ये काम कर लेते हैं, ये इसका सर्वर का क्या जरूरत है, इसका आप चेक करके 25 रुपए काट के उनको क्यों में सर यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है फोटो क्लिक करने का भी, अच्छा उसके बिना वो एप्लीकेशन आगे मूव ऑन नहीं होती है फोटो के बिना। सर और वो रिन्यूअल, अपडेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन तीनों में ही आता है। नहीं थी आप लोग देते हो इनको? हाँ सर, कि कभी हमारे पास आते हैं ना तो हमने बोला ये भर के दे दो, आपको कुछ पहले लिखने तो की वो जो जरूरत नहीं। आपका इजीएस्ट वे है, देखो लॉन्ग टर्म में तुझे रिफॉर्म इसमें से क्या क्या करना नहीं करना, आपके मैनेजर को लाइन में लग के लाइन में लगे लोगों के पास जाना चाहिए। शी इज़ नॉट गोइंग देयर एंड शी इवन डज नॉट नो कि मुझे लाइन में लगे हुए लोगों के पास जाना है या मुझे कोई वहाँ स्टैंप लगानी है और ओके करना है। शी इज़ नॉट अवेयर। सिस्टम डिवाइस करके रखा है ना सर आई हैड कॉल अ मीटिंग, सबको ऐसे करके मैंने सबको बताया कैसे होना है करके एंड ऑल। इवन मीना वाज देयर, योर मैनेजर हु वाज योर द हु केम एसओ कौन है आपका? सर ऐसा नहीं है हमारे यहाँ मैनेजर पे। कौन मीटिंग अटेंड किया? मैंने किया था सर। सी वाज आल्सो प्रेजेंट सर। बोर्ड आपको साहब ने बताया था कि स्टैंप लगा के दोगे आप लाइन में खड़े हुए लोगों को? तो आप लोग नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको भी मेमो दीजिए कि क्यों नहीं कर रही हैं। इट वाज फाउंड कि वो शी वाज नॉट असिस्टिंग पीपल इन द लाइन। मैनेजर आपका कौन है? सर शी इज द मैनेजर। तो आपका स्टैम्प है मैम? नहीं सर मेरा स्टैम्प नहीं है, हम इनिशियल्स करते हैं। डीएस का कहा है स्टैम्प? डीएस का है स्टैम्प। वो लाओ। इसलिए बना के रखा है कि स्टैम्प और पेन लाना, मैं बता क्या हाँ आपको हो गया, अभी मैं आपको स्लिप काट दूँ। सर इसमें व्हाट दे कैन डिवाइस इज, जब आपने 70 कैंप लगाए थे सर तो उस दौरान डीएलसीज का स्टाफ लगाया था, सर है ना? सर डीएलसी आप लोगों का कितना स्टाफ? डीएलएससी का डालसा का सर। अच्छा डालसा का था, आप लोगों का नहीं था? नहीं सर। अच्छा तो डालसा से पूछ लेते हैं, डालसा के 4 लोग यहाँ बैठ जाएं सुबह आके और वो लोग लाइन, एक सेकंड, उनको ऑथराइज किया था। फोटो तो उस कैमरा भी एक छोटा सा ही है, सबको मोबाइल से भी लेके देखिए सर मोबाइल में करके सर सिस्टम में वही कर रहे हैं, कहीं से वही कर रहे हैं सो यहाँ पर जो सारी चीज़ आप बता रहे हो, सर। ये फाइलें तो सर्च होनी नहीं है। हर एक मैनेजर के पीछे जो भी है, क्या आपकी पोस्ट क्या है मैडम? सर सीसीओ। सीसीओ। हर एक सीसीओ के पीछे पूरा फुल साइज ह्यूमन साइज बैनर लगवाइए हर एक उसके पीछे। और जो आप ये बता रहे हो उसका एक एसओपी मुझे बताइए हिंदी में, ठीक है, कि यहाँ पर आए हुए व्यक्ति का ये काम होगा, इसमें ना इसकी ज़रूरत है, ना इसकी ज़रूरत है, ना इसकी ज़रूरत है, ये होगा। लाइंस में सब जगह लिखवा दीजिए कि रिन्यूअल वाले आदमी को लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, उसका अलग से करेंगे। मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो लाइन में लगे हुए आदमियों के पास जाके स्टाम्प करके वेरीफाई करेंगे। रिटर्न हिंदी में रिटर्न यहाँ से लेके और जहाँ तक लाइन है बाहर भी लगा देते हैं। कम से कम 20 बैनर्स होने चाहिए इंक्लूडिंग हर बैकड्रॉप। ठीक है सर। ट्रेड यूनियन का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सारा क्लियर वर्ड्स में हाँ सर, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं सर, वो अपना खुद डिक्लेयर करेंगे सर। आप किस लिए आए हो? क्या चीज़ जमा करने आए हो? हाँ जी, लेबर कार्ड के लिए। तो पहले कब अप्लाई करा था आपने? ये किसने लिखा है? नीचे से दिए हैं। कौन है नीचे? ये है, कहाँ से कटी मैडम? मैडम ये पर्ची किसने दी है? सर ये टोकन हमारे यहाँ से ही जब कौन दे रहा है? नीचे बैठ रहे हैं। तो 70 नंबर पे लाइन पे लगा दिया इनको, 69 पे। आज कंप्लेन था, फिर आज आए। 13-14 को आए थे, कंप्लेन था। ये किसने दी है? नहीं ये नेट की नहीं है भाई। हैं? टोकन यही दे रहे हैं। कहाँ पे? तो ये किसने मांगा आपसे? वो वहीं से लगा के रख दिए थे। अच्छा, ये सब उन्होंने लगा के दिया है? हाँ जी। आपने भी लगा रखी है? जी नहीं। तो ये किसने बोला आपको ये पर्ची चाहिएगी? उसने लगा के दिए थे, पता नहीं था।
आपके पास भी है पर्ची? हमारा तो रिन्यूअल है सर जी। रिन्यूअल है जी 17/4/20 तक अपडेट है सर जी। 17/4/20 तक अपडेट है अच्छा, जी। अपॉइंटमेंट लिए थे। तो रिन्यूअल में आपका कितने बजे से आए थे? एक अभी तो मैं सवेरे 6 बजे से लगा हुआ हूँ सर। 6 बजे से लाइन में लगे हैं। तो ये तो रिन्यूअल ऐसे ही हो सकते हैं। किस चीज़ के 500 रुपये लिए? पंखा रोड रघुवर नगर। ये कुछ चल रहा है, देखो मैं धंधा चल रहा है। 500 रुपये लिए हैं इनसे। क्या बोले वो? लेबर कार्ड बना के देंगे। अच्छा, 500 रुपये ले रहा है कोई इनसे। सर ये बहुत से लोग ना इन्हें आइडिया नहीं है इस चीज़ तो का। हम डिक्लेरेशन से ये चीज़ हो सकती है, इसलिए तो ये आप पहले आए थे बिना इसके? नहीं पहले नहीं आया, पहली बार 2-3 बार आ चुके हैं, लेकिन भीड़ की वजह से अंदर ही नहीं गया। 3 बार लौट के गया वो। नहीं वो तो ठीक है, भीड़ की वजह से लौट के गए, पर इस पर्ची की वजह से तो किसी ने नहीं लौटाया ना। ये सब ना दलाली के धंधे चले हुए हैं। एंड लेट्स एक्सेप्ट दिस कि ये चल रहा है, हमको इसको ख़त्म करना है। ये 500 रुपये मतलब सरकार इनको चुईयाँ से पैसे दे रही है, ऊपर से 500 रुपये रिश्वत में दे रहे हैं वहाँ बाहर जाके। तो हम देख कर किस लिए रहे हैं? किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है कहीं। सर जी हो जाएगा ना? हाँ होएगा, क्यों नहीं होएगा। हर्षिल बोर्ड क्या लगने थे? हाँ जी सर। बोर्ड क्या लगने थे यहाँ पे? सर यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं, यहाँ पे प्रोसेस लिखी हो रजिस्ट्रेशन की, क्या प्रोसेस होगी, तुम्हें कहाँ से कहाँ जाना है। मैनेजर साहब कहीं पोस्ट वो लगी हुई है आपकी कि प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन की? कहीं लगाया हुआ है कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक? बेनिफिट्स का भी कोई पे कहीं नहीं है, यहाँ लगने होते हैं सर। यहाँ एक भी बोर्ड नहीं लगा हुआ कंस्ट्रक्शन बोर्ड का भी नहीं है सर के पता है ना। यहाँ भी एक भी बोर्ड नहीं लगा जहाँ से लाइन लगी हुई है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, मैनेजर की क्या ड्यूटी है। रिन्यूअल के लिए कितने लोग आए थे? अभी मतलब पूछा हुआ था लाइन में रिन्यू करने के लिए, ये सारे रिन्यू करने वाले हैं। ज़्यादा सर रिन्यूअल वाले। फॉर्म कहाँ भरवाया आपने? संगम बिहार में। संगम विहार में। तो कौन भरवा रहा है फॉर्म? सर कंप्यूटर वाले भरवा रहे हैं जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं। अच्छा, कितने रुपए ले रहे हैं? 700 रुपये लिया था जी। 700 रुपये? तो मैं दिया हूँ सर। तो कहीं का किस लिए देते हो? सर फार्म भरवाने के लिए। अब इन्होंने तो बोल दिया था कि जाओ अपने नज़दीक की दुकान पे करवा लो। किसने बोला? यहीं पे आया था एक दिन, हाँ, कोई किसी ने बताया कि वहाँ जाके करा लो। तो कहाँ यहाँ किसने बोला था? क्या यहीं पे था एक। तो वहाँ नज़दीक की दुकान पे जाके करा लो। जी जी। फॉर्म में क्या भरना होता है? नाम और ये सर वही है सर, सेल्फ सर्टिफिकेशन वो भरेगा सर, वही वही एड्रेस वो आधार देगा और रिफ्रेश के लिए एक बैंक अकाउंट डिटेल देगा बस। ये देखो, ये जो पेपर है ये किसने दिया? ये वाला कागज़ किसने दिया? ये तो वही लगाए होंगे सर। किसने? वहीं उसी दुकान ने, कंप्यूटर वाली दुकान ने 700 रुपये लिए उसने। अब ये सारे कागज सब दलाली का धंधा चल रहा है भाई हमारे नाम पे, सरकार के नाम पे। गरीब आदमी आधार कार्ड लिंक करवाएंगे तुम्हारा माँ का जवाब 700 देखो ये वहाँ बाहर कुछ लोग दलाली, अब तो खैर आप लोग तो आगे फॉर्म बनवा के दलाली का धंधा खोल के बैठे हुए हैं। ये सब दलालों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई दिक्कत हो तो यहाँ हम बैठे हैं। आपका रिन्यू होना है ना? नया बनवाना है आपको, रिन्यू होना है। आपने भी पैसे दिए? कहाँ? संगम बिहार में ऑनलाइन होती है ये, फिर भी हमारे को बुला रहे हैं जी, बोल रहे हैं। ठीक है आज करवाते हैं इसको, ये रिन्यू वाला सब सारा जो है। जस्ट सर 1 hour सर आई विल रिजॉल्व। हाँ इसको थोड़ा सा टर्निंग करो। सर दलाल खड़े होते हैं रात के 11-11 बजे तक नंबर लगाते हैं यहाँ पे, और वो पैसे भी लेते हैं 500-500 रुपए एक नंबर को देने के। 2 बजे 11 बजे आके नंबर लगाते हैं रात को 2 बजे। हाँ जी, और हम लोग यहाँ पे 6 बजे 5 बजे आ जाते हैं, फिर भी हमारा काम नहीं होता सर। सर हम जैसे ही यहाँ पे भी आए थे, यहाँ पे 10-12 स्कूटर से सारे चले गए। नहीं वो तो मैंने देखा, यहाँ पे 10-12 लोग खड़े हुए थे, स्कूटर से तुरंत निकल गए। हाँ जी, वो वहाँ खड़े रहते हैं। हम एक
हफ्ता हो गया हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ, स्कूल से आना नहीं। तो वो कहते हैं किसी तरह का आपने नोटिस इशू नहीं किया। इवन हमने पुलिस में भी कंप्लेंट करी है सर उनकी कि आप लोग यहाँ से जाइए। मैडम इनका काम हम कर देते हैं, इनका काम कर दें तो ये दलालों के चक्कर में पड़ेंगे क्यों? सर हम गरीब आदमी हैं, हम नंबर लगाए या मजदूरी करने नहीं, जाएं। सही बात है। अगर 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए जद्दोजहद करते हैं हम सुबह से शाम। परमानेंट एम्प्लॉय यहाँ कितना पैसा मिलता है? 30,000 आपको मिल जाता है। 5,000 रुपये एक गरीब आदमी के मिलने के लिए अब आप एक्सक्यूज दे रहे हो, वहाँ पे ये है वो है। हम इनका काम कर दें, किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये सारे 500 रुपये दे के आए। यूनियन वाले ऊपर आके लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? हिम्मत कैसे हो जाती है यूनियन वालों की? वो कहते हैं कि जब आपके ऑनलाइन पोर्टल में ये चीज है, आर यू रजिस्टर्ड इन एनी यूनियन, तो कहते हैं आप हमारा ये क्यों मना कर रहे हो? आप जो है, मैं आपकी भी जिम्मेदारी फिक्स करूंगा अगर यहाँ दलाल मिले या यहाँ किस तरह का डिसऑर्डर मिला तो। बाकी हमारा रूटीन काम को छोड़ दीजिए, इस बेड का निपटाइए, ठीक है? इनके ठीक साथ है, मदद करके ये सारे डीएल्स की जिम्मेदारी भी लगा दीजिए मैडम। सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिश्नर्स की जिम्मेदारी है अपनी पूरी अथॉरिटी यूज करके यहाँ पे कोई दलाल दिखा। रिन्यूअल के लिए सामने अभी जैसे आदेश किया उसी टाइप का अभी लाइन पे खड़े होके सबको करके क्लियर करके जिसका रिन्यूअल है सबका स्टैंप लगा के सबको भेज दीजिए, किसी के हो गया उसका, ठीक है? और जिसका आपकी जिम्मेदारी है लाइन में लगे हुए लोगों के सिग्नेचर करके फोटो करके, ताकि वो केवल फोटो खिंचाने जाएंगे वहाँ पे अभी की व्यवस्था में। बाकी इस व्यवस्था हमारी इंक्वायरी करनी है तो क्या नाम है, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हमने फोन नंबर दे रखे हैं, क्या नाम है ठेकेदार। अरे चिंता नहीं है यार, भरोसा है ना सरकार को। बुलवाते मैं कह रहा हूँ हमें सरकार को आप पे भरोसा है, एक बार लिख के दे दिया हो गया, वो इंक्वायरी है, कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। 300 रुपए मिलते हैं दिहाड़ी के सर जी, और यहाँ पे आते हैं रोज 1 हफ्ते से चक्कर काट रहे हैं, वो भी नहीं मिलते, वो भी नहीं मिलते। सही बात है। ऊपर से धक्का मार के पीछे करते करते यहाँ पे भी आप चिंता मत करो, ये ठीक कर दूंगा मैं। मुझे पता चला था तभी आया हूँ देखने की क्या गड़बड़ कर रहे बहुत हैं। बहुत धन्यवाद सर जी। हम बिल्कुल ये 1 साल वाला सिस्टम खत्म कर दो, नो टाइम बार, ठीक है? रिन्यू कम, अगर कोई आदमी आके कहता है भी मेरा रिन्यू होना है तो उसका रिन्यू हो गया, बस सेल्फ डिक्लेरेशन पे ले लो, रिन्यू कर दो। ये 1 साल की तो हमने अपनी तरफ से मर्जी लगा रखी है ना। सर जी हमारे भी जमा नहीं हो रहे, अगस्त से आ रखे हैं। नया फॉर्म लेकर आइए रिन्यू करने के लिए। नहीं हमारा तो नया ही बनवाना है। अब वही आज करेंगे सारा। जब भी आते हैं तो लोग कहते थे सर्वे डाउन हो रहा है, घर जाओ। 5 बजे तक लगा रहते हैं। ये मोबाइल से कर दो इनका सिस्टम, सर्वर ही खत्म हो जाएगा। मोबाइल पे फोटो लें। भरोसे तो पुराना होगा, नहीं बनेगा। पैसे भी लेते हैं, अभी 5 बजे के आ रखे हैं भूखे प्यासे। किसी से किराया लेके आई हूँ, कह रहे नहीं होगा तुम्हारा। थोड़ी नहीं होता नहीं होएगा, चिंता मत करो, होएगा कैसे नहीं। इतना पुराना हो गया ठीक है, अब आज आए हैं तो करवाएंगे ना। साहब, इतना पुराना हो गया, कह रहे नहीं बनेगा। नहीं, कितने साल हो गए? 5 साल हो गए हमारी ख्याल। नहीं, सबका होगा, सबका होगा। तो इसको रिव्यू करके शाम तक मेरे को बताओ क्या क्या चेंज कर रहे हो। और सारे ऑफिसेज में जहाँ जहाँ बोर्ड लगने चाहिए, यहाँ क्लियर बोर्ड लगना चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैटर है ना, एक बार लिख वो मैटर मेरे को भेजो लिख के कि क्या बोर्ड लगवा रहे हो, ताकि इनमें से एक आदमी को पता हो कि क्या पेपर चाहिएगा क्या नहीं चाहिएगा। रिन्यू करवाने वाला आदमी के क्या अधिकार है, रिन्यू कैसे होगा, जो नया कार्ड बनवा रहे हैं नया कार्ड बनवाने वालों के क्या है। जैसे यहाँ बोर्ड लगाओ, पोस्टर ताकि इनको कोई ऊपर या नीचे यहाँ दलाल कोई कुछ ना कह सके, ठीक है? उसके बाद ये सर फाड़ देंगे उसका, अगर कोई दलाल पैसे मांगेगा तो ये भी लिख देना, बाहर ही करवा देंगे रिन्यू। भाई पैसा देने की जरूरत नहीं है। 25 रुपया रुपया जो जब यहाँ पे नहीं हो रहा है तो क्या करे बंदा? नहीं चिंता मत करो, अभी तब फिर हम किस लिए आए हैं? सर 10 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, जब मैंने अरे वही तो व्यवस्था बना रहे भाई, तो हर जगह बोर्ड लगेगा, रिन्यू करने वाला आदमी अंदर नहीं जाएगा। उनका जो फीस है उसका रसीद देगा 25 रुपया का, बाकी किसी के भी पैसा देने की जरूरत नहीं। बस ये सारा बोर्ड का मैटर लगाओ मुझे बता के, ठीक है? चलो मेरे को बोर्ड